Welcome to everyone. Good evening, dear student. Today we are starting chapter number 2, and the name of the chapter is Collection of Data. Chapter number 2, Collection of Data. Collection of Data. Dear student, in our previous class we were discussing about the introduction of statistics and economics, and we read that statistics is helpful for solving economic problem. For every economic problem, we need data, and the data we can collect, and then after we solve the problem by applying the measures of statistics. Now we are starting the chapter 2, collection of data. In this chapter, we will understand how we will collect data, what are the methods of collecting data, because we know that without the data it is not possible to solve the problem, to analyze the problem, to take the measures, to evaluate, or to interpret something. It means all the problems we leading, the problem solution of the problem is to measure them, and we can measure them in form of numeric information, and numeric information we will collect in form of data. So today we will understand how the data will be collected. So dear student, there are two types of the source of data. Source of data, so please write heading source of data. Source of data, my dear student, there are two source of data. First is primary source, and second is secondary source. First we will understand what is primary source. Primary source means the data we are collecting from the source of origin. एक मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है. जैसे सोर्स ऑफ ओरिजिन से जो डेटा कलेक्ट होते हैं, दीज आर नोन एज प्राइमरी डेटा. जैसे कि मान लो कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो रिपोर्टर क्या करेगा, उस इवेंट को जो वहाँ पे हैपनिंग हुआ है वो उसको वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन पे उसको रिकॉर्ड करेगा. तो वो कौन सा डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा. एंड द सेकेंडरी डेटा, द सेम इंफॉर्मेशन यू एंड मी वी विल रीड थ्रू न्यूज़पेपर, और वही न्यूज़ अपने को अगले दिन काय में पढ़ने को मिलती है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है. तो वो कौन सा डेटा होगा, वो सेकेंडरी होगा. सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ origin. And secondary data is the data which is used by the other method. It means through newspaper, through magazine. So please write what is primary source of data. Primary source of data, these are collected from the source of origin, source of its origin, ORIGIN. It offers you first hand quantitative information, quantitative information relating to your statistical study. Yes. So what is primary data? The data that we are collecting from the source of origin. I told you one example related to the accident event. Second example, census of India. You know that after every 10 years, Government of India through Home Ministry establish or arrange or held
the census of India, in which enumerator will go door to door. इसमें न्यूमरेटर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, ही और शी इज नॉन एज enumerator. enumerator विल गो डोर टू डोर. वो क्या करते हैं? डोर टू डोर जाकर और क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वॉन्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ 10 हाउसेज, देन दे विल हैव टू अप्रोच डोर टू डोर 10 हाउसेज. यदि उनको 10 घरों की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उनको सबको एक एक के घर पे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा और बिल्कुल सबसे जो सारी इंफॉर्मेशन वो पूछनी पड़ेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू रिलेटेड प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड टीचर वांट टू आस्क देयर परसेंटेज. टीचर उनसे क्या पूछना चाहता है? उनके परसेंटेज पूछना चाहता है. तो टीचर क्या करेगा? सब बच्चों से यदि उनसे पर्सनली जाकर वो पूछता है तो ये होगा प्राइमरी सोर्स. और यदि वही इंफॉर्मेशन एक बार टीचर उनके लिस्ट बना लेता है कि दीज आर द 30 स्टूडेंट एंड दीज आर द परसेंटेज ऑफ दीज स्टूडेंट, और अब उस लिस्ट को यदि वाई जेड पी क्यू आर कोई भी बाद में पढ़ता है तो उसको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज रेडीमेड डेटा. सो सेकेंडरी डेटा आर ऑल्सो नॉन एज रेडीमेड डेटा एंड प्राइमरी डेटाज आर नॉन एज original data. So I think it is clear. Primary source of data means the data that we are collecting from source of origin. Origin का मतलब जहाँ से उनकी शुरुआत होती है, जहाँ से वो बनते हैं, that is source of origin. Best example is related to the accident event. कि मान लो जहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट होता है तो रिपोर्टर क्या करेगा? जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे जाके सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा? ही विल कलेक्ट. What is the time of accident? What is the number of the vehicle? How many persons were there? What is the area? कौन सा एरिया है ये? नियर बाय पुलिस थाना कौन सा है? ये सारी इंफॉर्मेशन है. ये क्या होगी? ये वहाँ पे ऑन द स्पॉट जगह पे जाके जो कलेक्ट की जाएगी. सो दिस इज नॉन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. नाउ वी विल रीड द सेकेंड टाइटल, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. प्लीज राइट secondary source of data. Secondary source of data, it implies collection. It implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical survey. SURVEY, statistical survey. Next, it does not offer you first hand information relating to your statistical study. You are to rely on relay means to depend on. You are to rely on
the information rely on the information which already exists. For example, if I want to know at this time what is the total population of Jaipur district on the basis of statistical survey 2011, यदि आज मुझे 2011 के अकॉर्डिंग जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन कितना है, तो आई थिंक आई विल टेक द बुक और हैंड आउट विच इज़ रिलेटेड टू सेंसस ऑफ इंडिया एंड द डेटा इज़ अवेलेबल। तो इसमें मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस बाजार से कोई बुक लेके आ गए या उसमें देख लिया। फॉर एग्जांपल वी कैन सी इट थ्रू गूगल सर्वे और सम अदर सोर्स मैगजीन्स और द जीके बुक। So secondary data are ready-made data and primary data is the data which is collected only and only from source of origin. Now what is primary data? प्राइमरी सोर्स तो हमने पढ़ा, प्राइमरी डेटा क्या होगा? प्लीज राइट प्राइमरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? Data collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end are called primary data. What is primary data? Investigator. Who is the investigator? Who is collecting information? It means if investigator is collecting information for his own purpose, यदि कोई इंफॉर्मेशन को अपने पर्पज के लिए कलेक्ट करता है तो वो हर बात पूछेगा, फर्स्ट टाइम पूछेगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूछेगा। सो these types of data आर नोन एज प्राइमरी डेटा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है क्रिमिनल से, तो उसको पकड़ती है तो फर्स्ट टाइम ही तो करती है। ऐसा थोड़ी है कि डेली हर किसी को मार्केट से पकड़ लिया या गली से पकड़ लिया, उठाकर पूछने लग गए। व्हेन एनीवन हु इज कमिट अ क्राइम, द पुलिस विल अरेस्ट हिम एंड देन आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइम पूछती है उससे और फिर शुरू से लेकर लास्ट तक पूछती है, वो प्राइमरी डेटा होगा। और फिर आप देखिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाद में पुलिस कहाँ ले जाके सबमिट करती है? कोर्ट में। और यूं मान के चलिए कि थ्रू प्रेस रिपोर्टर हमको भी पता लगती है न्यूज़पेपर में। तो अब जो हम रीड करेंगे या कोर्ट को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो प्राइमरी नहीं है, दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि प्राइमरीली उसको कलेक्ट किसने किया है? पुलिस ने। एंड देन आफ्टर दे आर सबमिट टू ऑनरेबल जस्टिस। सो प्राइमरी डेटाज आर द डेटा विच इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। Now you can write the secondary data. What do you mean by secondary data? Secondary data क्या होते हैं? These are secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose,
for some other purpose, then answering of the question in hand. इट मीन्स कि डेटा को जिन पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था वो पर्पस कुछ और था, कलेक्ट किया और फिर उनको लिख दिया। अब उनको यदि कोई और यूज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेटा पहले से हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है जिसने उनको कलेक्ट किया था उसका पर्पस कुछ और था और अब हमारे पास अवेलेबल है और हम उसे रीड कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। इन इजी वे यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी डेटाज आर द दोज डेटाज विच आर रेडीमेड डेटा, यानी ये वो डेटा होते हैं जो हमारे पास पहले से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट वी विल रीड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड secondary data. So please write heading difference between primary data and secondary data. Difference between primary data and secondary data. बच्चों अब हम ये समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप टाइटल लिखिए, प्लीज राइट द टाइटल डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, ओरिजिनलिटी में डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा कि जो प्राइमरी डेटा है और एक है सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा होंगे वो क्या होंगे, वो ओरिजिनल होंगे, और सेकेंडरी डेटा होंगे वो क्या होंगे, वो ओरिजिनल नहीं होंगे। ओरिजिनल क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल को आप यूँ समझिए ओरिजिनल तो है बट नॉट ओरिजिनल मीन्स कि प्राइमरी का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम वी आर कलेक्टिंग एंड सेकेंडरी डेटा वी आर प्रिंटिंग देम। तो इसलिए प्राइमरी डेटा तो वो हो गया कि जो हमने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, दैट इज ओरिजिनल डेटा, और सेकेंडरी है वो नॉट ओरिजिनल का मतलब वो रेडीमेड डेटा हो गया। तो आप इसको रेडीमेड भी कह सकते हो, यहाँ पे रेडीमेड डेटा। इन दिस सेंस वी कैन से दिस इज नॉट ओरिजिनल डेटा। क्यों है ये ओरिजिनल, क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए these are already exist. Second difference, suitability of objective. Difference in the suitability of objectives. तो देखो बच्चों क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा होता है वो हमेशा उसका कोई ना कोई क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स इट इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। और जो सेकेंडरी डेटा होता है सम अदर पर्पस। इसको आप यूं समझ लीजिए, अवर इंडियाज होम मिनिस्ट्री कलेक्ट द प्राइमरी डेटा रिलेटेड टू सेंसस ऑफ इंडिया। हमारे भारत के गृह मंत्रालय ने डेटा कलेक्ट किया लोगों का, डोर टू डोर इन्यूमरेटर को अपॉइंट करके। पर्पस क्या था, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, and according to that they will make policies and plans, what is the need of infrastructure, what is the need for food securities and others. And the same data are printed in GK book,
और वो जीके बुक मैं लेके घर पे आ गया और अब मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और उस तैयारी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ. फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आई एम रीडिंग अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया और वी कैन से डेटा रिलेटेड टू सेंसस ऑफ इंडिया. तो बच्चों मेरा यहाँ पे पर्पज क्या है कि मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करना है, पास करना है, तो उसके लिए मैं रीड कर रहा हूँ. तो मेरा पर्पज क्या हो गया, अलग हो गया. और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसका डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज क्या था, अलग था. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट that what is the suitability of the objective. Primary data are having different or specific objective or purpose and secondary data have some other purpose. Now next difference, that is third. Yes, third difference. Difference in cost of collection. आई थिंक ये तो सभी बच्चों को पता होगा. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डेटा को कलेक्ट करने की कॉस्ट किसमें ज़्यादा आएगी. नो डाउट प्राइमरी में ज़्यादा आएगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एन्यूमरेटर एंड दे आर कलेक्टिंग डेटा. एक एन्यूमरेटर को डेटा कलेक्ट करने के लिए एक वार्ड दिया गया, इट मीन्स लोकेलिटी में एक वार्ड दिया गया जिसमें 200 हाउसेस थे और उनको एक मंथ दिया गया. एक महीने तक वो कलेक्ट करेंगे, उसके लिए उनको रेमुनरेशन मिलेगा 12,000. सपोज कीजिए वो एक टीचर हैं और उनकी सैलरी है 50,000, 50,000 और 60,000. सो डियर स्टूडेंट ही विल गेट 1 month PL. इट मीन्स अपनी एक महीने की सैलरी के बराबर उनको क्या मिलेगी, PL मिलेगी. समझ लो 50,000 और मिल गए तो टोटल रेमुनेशन कितना हो गया, नियर अबाउट 62,000 और 65,000. बट द सेम डेटा यू कैन स्टडी बाय बाइंग अ बुक फ्रॉम द मार्केट. यही डेटा यदि आप बुक कलेक्ट करेंगे मार्केट से, जीके की बुक लाएंगे, तो आप कितना मानते हैं, आई थिंक 200 and 300. This is the amount we will spend for it and we will know about the information. So I think it is clear. Primary data need more cost and secondary data need less cost. प्राइमरी डेटा इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मोर कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा होगी. एंड सेकेंडरी डेटा less cost. Now our next topic is related to methods of collecting data. Methods of data collection. Methods of data collection. So dear student, different methods we can use for collecting data. So I am writing, first is direct personal investigation. We will read these one by one. Direct personal investigation. Second, indirect oral investigation. Third, information from local sources or correspondents. Fourth, information through
information through questionnaires and schedules. There are two methods of questionnaires. First is ए आ जाएगा इसमें, मेलिंग मेथड, एंड बी हो जाएगा इन्यूमरेटर्स मेथड. Enumerators method. So one by one we will read. So you can write first method, direct personal investigation. Method first, direct personal investigation. What is direct personal investigation? In this method, data are collected personally by the investigator from the respondent. यस बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जिससे डेटा कलेक्ट करना होता है उसके बिल्कुल पास में जाएगा, उसके घर जाएगा या जहाँ भी वो है वहाँ जाएगा उसके पास और उसे पूछेगा, पर्सनली पूछेगा. दिस इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. व्हाट इज द, नाउ वी विल रीड व्हाट इज द सुटेबिलिटी. ये मेथड हम कम काम में लेंगे. सो आप इसमें लिखिए सुटेबिलिटी. ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा? तो देखो फर्स्ट तो क्या होगा, ये कहाँ पे सुटेबल होगा? जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, लिमिटेड होगी. इन्वेस्टिगेशन क्या है, लिमिटेड है. इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी जगह पूछने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, ओरिजिनल डेटा रिक्वायर्ड. ओरिजिनल डेटा आर रिक्वायर्ड. जहाँ पे ओरिजिनली हमें जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उससे ही पूछना पड़ेगा और हमें ओरिजिनल डेटा चाहिए, तो वहाँ पे ये सूटेबल होगा. जैसे अभी डॉक्टर से, पेशेंट से डॉक्टर बात करता है तो वो पेशेंट से तो पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है. ये थोड़ी है कि नहीं आप बताओ, अपने ब्रदर को भेज दो. हो सकता है कि कोई डॉक्टर आजकल ऑनलाइन भी सलाह देते होंगे, बट आप मोस्टली नोट करना फिजिकल एफिडेंस देखने के लिए कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है. जैसे मान लो कहीं स्वेलिंग है या कुछ और है, तो वो ऐसा थोड़ी है कि किसी के ब्रदर ने बोल दिया कि हाँ मेरे ब्रदर को स्वेलिंग है आप दवाई दे दो. वो डॉक्टर बुलाएगा कि यस पेशेंट को लेके आइए. आ रहा है आपको मेरी बात समझ में? देयर आर सो मेनी सेक्टर्स. तो जहाँ पर हमें ओरिजिनल डेटा की रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर ये मेथड काम में आएगा. थर्ड, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें क्या रखना हो, सीक्रेट रखना हो. Informations are to be kept secret.
and accuracy of data is required. Accuracy of data is required. Accuracy of data is required. Last, when direct contact, when direct contact with the informants, informants कौन होता है? इंफॉर्मेशन देने वाला, informants is required, मतलब कि जहाँ पर हमें है ना, जिससे इंफॉर्मेंट, जो इंफॉर्मेंट्स है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, यही कंपलसरी है, तो वहाँ पर ये मेथड क्या होगा? सुटेबल होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट्स मेरिट. मेरिट, मेरिट या बेनिफिट. क्या क्या इसके बेनिफिट हैं? ऐसा करने से क्या होगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स? फर्स्ट, we will able to maintain the originality of the data. Originality of data. Second, accuracy. थर्ड, रिलायबिलिटी. जब पर्सनल बात करके हमको इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो आई थिंक वो विश्वसनीय भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ये एल होगा, एल. रिलायबिलिटी. रिलेटेड इंफॉर्मेशन. रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मान लो यदि आप और किसी से इंफॉर्मेशन पूछोगे तो हो सकता है कि you will not get correct information, and if direct personally we are contacting, then the related information we will get. These are the benefit. Next, uniformity. यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जिससे आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो यूनिफॉर्म होगा. यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, डीमेरिट्स. Demerits of this method. पहला नुकसान, it is very difficult to cover wide area. Difficult to cover wide area. इसका मतलब है यदि एरिया छोटा है तो ये मेथड यूजफुल होगा. यदि बहुत बड़ा एरिया है तो पर्सनल कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा क्या आएगी? दिक्कत आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा. सेकंड, पर्सनल बायस. पर्सनल बायस कैसे? कि इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेंट इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनल किसी से बात करता है और उससे जानकारी लेता है. तो यदि अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला ही, यदि मान लो इंफॉर्मेशन देने वाले ने इंफॉर्मेशन सही दी है लेकिन कलेक्ट करने वाला यदि उसको गलत फिल कर दे तो इससे नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है. थर्ड, कॉस्टली. Yes, this is demerit because it is very costly to approach door to door. खर्चा ज़्यादा आएगा. और आई थिंक लिमिटेड कवरेज. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड कवरेज? लिमिटेड कवरेज का मतलब होता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो क्या होती है? स्मॉल होती है.
इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। इसका मतलब बच्चों यूँ है कि जैसे आप किसी के घर गए तो क्या पूछेंगे, नेम, फादर्स नेम, व्हाट इज योर जॉब, क्या ये आपका घर है, हाउ मेनी सन और डॉटर यू आर हैविंग, व्हाट इज योर एजुकेशन, दैट्स ऑल। बट उस आदमी में क्या क्या कमियां हैं, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका लोगों के साथ बिहेव कैसा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलने वाली नहीं है। मतलब कि हमें उसके बारे में ओवरऑल चीज़ें पता नहीं लगेगी। सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट लिमिटेड कवरेज में बी देयर, वी विल नॉट एबल टू गेट ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द पर्सन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड इज indirect oral investigation. Method second, indirect oral investigation. Indirect oral investigation. Indirect oral investigation. Indirect, not direct. Indirect means कि जिसके बारे में जानकारी चाहिए आप उससे बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, सपोज दैट देयर आर टू पर्सन पी एंड क्यू, तो क्यू के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं पी से बात कर रहा हूँ कि मुझे बताओ कि पी में, क्यू में क्या क्या उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, या उसकी क्या क्या कमजोरी है, कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। तो अब मेरे से क्यू की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्यू से नहीं पूछ रहा हूँ। रिलेटेड टू क्यूज इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट आस्किंग टू क्यू, आई एम आस्किंग टू अदर पर्सन, मे बी पी, जे, के, कोई भी हो सकता है। राम के बारे में इंफॉर्मेशन श्याम, मोहन, सोहन से लेना, इट मीन्स फ्रॉम फॉर whom you want to get information you are not approaching, यानी जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो आप उससे बात ही नहीं करोगे, उसकी बजाय आप किससे बात करोगे, किसी और से बात करके और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इसका मतलब है कि राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यदि आप श्याम से पूछते हैं, इट मीन्स कि हमारी बात श्याम से हो रही है और श्याम से हम जानकारी लेते हैं पूरी किसके बारे में, राम के बारे में। तो ये बच्चों क्या होगा, दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो प्लीज राइट इनडायरेक्ट oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। इसका मतलब कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे हम बात ही नहीं करेंगे, किसी और से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस मेथड विल सुटेबल वेयर। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा। where it will be suitable, so please write suitability। सुटेबिलिटी पॉइंट फर्स्ट, कहाँ कहाँ ये सुटेबल होगा। सबसे पहले तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटिवली क्या हो, लार्ज हो। इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज।
Second, if it is not possible, if it is not possible to contact directly to the respondent, जैसे मान लो कि रेस्पोंडेंट दुबई रहता है और उसके ब्रदर से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो या उसके पड़ोसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो ये हो गया एक तरह से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे है ही नहीं, दुबई रहता है, तो उसके पड़ोसी से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उससे आप पड़ोसी से कब बात करोगे? व्हेन will you talk to the neighbor when the person or the respond actually he or she is not available to contact, at that time we will contact to other person, यानी जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है वो हमारे सामने अवेलेबल ही नहीं है या नहीं हो सकता, तब ये मेथड क्या होगा? यूजफुल होगा। थर्ड, if respondent is not able to give information, जैसे मान लो कि किसी रेस्पोंडेंट से बात करनी है, फॉर एग्जांपल कि एक महिला है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका अकाउंट नंबर कितना है। सपोज दैट आई एम द ग्राम सचिव और द सेक्रेटरी एंड आई हैव अपॉइंटेड इन ग्राम पंचायत, और एक महिला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे घर सैंक्शन करना है, तो उसके लिए मुझे उसका अकाउंट नंबर और उसका आधार नंबर और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब मान लीजिए कि वो लेडी पढ़ी हुई नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में फिर हमें उनके जो भी बच्चे हैं या कोई भी हस्बैंड है या रिलेटिव हैं उनसे ही हमें बात करनी पड़ेगी। सो इफ़ द रेस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू गिव इंफॉर्मेशन देन दिस मेथड इज सुटेबल। यस, फोर्थ, if investigation is complex, मान लो कि इन्वेस्टिगेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि रेस्पोंडेंट है वो आंसर दे ही नहीं सकता, यानी इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि किसी को अपने घर के नक्शे के बारे में बताना है, मैप के बारे में बताना है कि मकान का लंबाई चौड़ाई कितना है, रूम का लेंथ और विड्थ कितना है, तो अब ये चीज़ें ऐसी है कि इसको घर का हर मेंबर आई थिंक मैं समझता हूँ नहीं बता पाएगा। तो अब जैसे उस घर में मान लो कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है या थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो बता पाएगा। तो आई मीन टू से दैट इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स है and the respondent is not able to give answer at that time, such types of indirect or oral investigation is useful. Now dear student, we will understand its merits of indirect oral investigation. What are the benefits? First, wide coverage. Wide coverage. It means this method can be applied up to wide area, यानी लंबे चौड़े एरिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको दूसरों से तो लेनी है इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स कि इसके लिए रेस्पोंडेंट का खुद का होना जरूरी नहीं है। लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव कैसे होगी? एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज दैट वी नो दैट इन अवर लोकल बॉडीज वी हैव वार्ड पार्षद,
हमारे लोकल बॉडी में वार्ड पार्षद होता है, तो उसको अपने वार्ड की आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पता होती है। दैट इन कॉलोनीज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, किसका घर किस गली में है, किसका घर कहाँ पे है, किसके घर में कितने मेंबर हैं, या मान लो कोई मंदिर है उसके पास पास में किस किस का घर है, एयरटेल का जहाँ टावर लगा हुआ हो उसके पास में कौन कौन से घर हैं, उसके लेफ्ट और राइट में कौन सा घर है। तो इसके लिए हमें उन घरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी हमें वहाँ के जो लोकल जो रेजिडेंट्स है वही बता देंगे, जैसे कि वार्ड पार्षद। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति से आप बात करके बहुत सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यू कैन टॉक टू वन पर्सन एंड यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम और हर, so it is less expensive in this way. Third is expert opinion. Expert opinion, how? It means if we want to collect the information about P and Q and they are general person and in that area R is the expert person, यानी उसी एरिया में R है जो बिल्कुल ये चीज़ें बताने में एक्सपर्ट है, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो P या Q के बारे में बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन बता देगा जिनको शायद P और Q से खुद से पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। तो कई बार इससे एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती है। जैसे अभी मान लो कि अबाउट अ स्टूडेंट इफ प्रिंसिपल इज आस्किंग, यानी एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी ली जाए, तो बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके पेरेंट्स उतना अच्छा नहीं बता पाएंगे जितना उसका क्लास टीचर बता पाएगा। तो इफ सच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू क्लास टीचर, आई थिंक इट इज एक्सपर्ट्स ओपिनियन। यस। 4, फ्री फ्रॉम बायस। Yes, free from bias means suppose that you are collecting information from K. आप K से कोई information पूछते हैं, तो बच्चों मान के चलिए K है ना, हम K खुद के बारे में बिल्कुल आप इस बात से एग्री होंगे कि वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि आई कैन डू दिस, मेरे पास ही है, मेरे पास वो है। K कभी अपनी कमजोरी को नहीं बताएगा। बट यदि उसी एरिया में W रहता है और W से पूछा जाए, तो W से हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो W को क्या मतलब है, W सब कुछ बता देगा कि सर ये तो इसमें अच्छा ही है और ये उसमें बुराई है। तो आई थिंक फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, इट मीन्स कि इफ यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, then may be possible that exact information you will not get, but you will get these information from others, then these are not from bias. वो आपको पूरी चीज़ें बता देगा, उसकी अच्छाई भी बताएगा और उसकी बुराई भी बताएगा, वो किसी भी चीज़ के डीमेरिट्स भी बताएगा और मेरिट्स भी बताएगा। इन दिस वे फ्री फ्रॉम बायस। एंड लास्ट इज सिंपल। 5th merit is simple. It is very simple to collect the information in by this method of indirect oral investigation. Now we will understand its demerit. Yes, demerits. Only 3 demerits are there. First, less accurate. इसका मतलब बच्चों कि आप यदि ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ए से पूछेंगे तो ए ही तो सबसे सही बताएगा। यदि ए के बारे में इंफॉर्मेशन यदि आप क्यू से पूछेंगे तो हो सकता है कि क्यू तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन जानता है, बता भी देगा, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी बता देगा जिसका ए से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब है कि क्यू उसमें कुछ ऐड करके भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग अबाउट राम, मैं राम के बारे में पूछ रहा हूँ, बट मैं राम से नहीं, मैं दिनेश से पूछ रहा हूँ। तो दिनेश राम के बारे में मुझे कई इंफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी बता दे या कुछ चिकनी चुपड़ी बातें या कोई गलत बातें ऐड करके भी बता देगा। तो आई थिंक कि राम से रिलेटेड एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो हमें राम से ही पता लगेगी। आई विल गेट एक्चुअल इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम राम, एंड इफ वी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम अदर पर्सन,
then I think these will be less accurate. Next, second, bias. ये बच्चों ये दोनों तरफ ही आया था, फ्री फ्रॉम बायस, और बायस ये मेरिट में भी है, डीमेरिट में भी है। बायस इसलिए है कि आप यूँ समझिए कि यदि आप राम के बारे में इंफॉर्मेशन दिनेश से पूछते हैं तो दिनेश है ना कुछ बातें मिलाकर भी आपको बता देगा, कुछ ऐसी बातें या कमियां राम के बारे में बता देगा जो राम में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बायस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। एक्चुअल में राम एमए किया हुआ है लेकिन दिनेश बता देगा कि वो तो 10th पास भी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें बताने वाला तो हमने पूछा और वो बता रहा है, ये तो हम देखो कि वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है या कितनी गलत। सो सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज इफ वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर। थर्ड इज doubtful conclusions. How doubtful? It means the information you are collecting, you will not have full confidence. यानी आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके बारे में, जैसे सपोज दैट आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए फ्रॉम के, ए की इंफॉर्मेशन में के से कलेक्ट करता हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि के मुझे जो बता रहा है वो सब कुछ सही है। यदि के ने कोई गलत इंफॉर्मेशन बता दी या डाउटफुल इंफॉर्मेशन बता दी तो मेरा कंक्लूजन भी क्या होगा, डाउटफुल होगा। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द मेरिट, डीमेरिट and suitability of the method indirect oral investigation. Next method is dear student, next method indirect oral investigation. After it we will first understand difference between direct personal investigation and indirect oral investigation. Difference between direct personal investigation and indirect oral investigation. टाइटल लिखेंगे आप इसमें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इंफॉर्मेंट के साथ क्या होगा, कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट with informants or respondent. Yes. और इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट
absent of direct contact, absent of direct contact. Second, it is suitable when area is small, and it is suitable when area is wide. Third, informant should well versed in language, यानी उसको वो लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए। जैसे मान लो कि इन्वेस्टिगेटर इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको उसके लिए इंग्लिश का आना क्या है, जरूरी है। और ओरल इन्वेस्टिगेशन में देयर इज नो नीड फॉर इट, यानी कोई इंफॉर्मेंट है, इन्वेस्टिगेटर इंग्लिश में बात करता है और रेस्पोंडेंट को हिंदी आती है, तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ लेगा जिसको इंग्लिश आती है। तो इस मेथड में है ना, उसको लैंग्वेज आए ये जरूरी नहीं है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन and indirect oral investigation. Now the next topic we will read in our next class. Thank you very much.